کیرولین کے ساتھ اس کا تعلق اس کو اپنی نئی کمیونٹی کا حصہ بننے کا تقویت بھرا احساس دے رہا تھا۔ کم و بیش ہفتے 2 ہفتے بعد اس کی ایک رات کیرولین کے ساتھ گزر جاتی تھی۔ اس رات وہ اسے ماریوانا اور بیئر کا ایک کیس خرید دیتا۔ باقی دنوں میں کیرولین اپنے ڈرگی نئے پرانے بوائے فرینڈوں کے ساتھ پھرتی نظر آتی رہتی، مگر وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسٹیفنی اب اس کی بات چیت پر خوشگوار جوابی تاثر دینے لگی تھی۔ وہ ہنوز اسٹیفنی کے ساتھ شادی کرنے کو ذہنی طور پر تیار تھا۔ کیرولین کے ساتھ تعلق کے شروع کے دنوں میں اسے احساس تھا کہ جیسے بار کے کئی لوگ کیرولین کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ شاید اس کے تعلق کے بنا پر پرمیت کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، مگر اب اسے ایک نیا ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس تعلق کے بنا پر لوگ اسے کمیونٹی کا زیادہ حصہ سمجھنے لگے تھے۔ اس کے خیال میں اس کے ساتھ اسٹیفنی کے بہتر رویے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی، یعنی اب مجھے لوگ اپنا رشتہ دار جانتے ہیں اور اسٹیفنی تجربے کار سمجھتی ہے۔ بلے بھائی بلے، واہ گرودیاں شانہ۔ یہ انوکھا تجزیہ ذہن میں آشکار ہونے پر من ہی من مسکراتا پرمیت اس روز غیر معمولی اعتماد کے ساتھ اسٹیفنی کے سامنے بار پر جا بیٹھا۔ اے ڈارلنگ، ایک بیئر تو دو۔ اسٹیفنی نے اس کی غیر معمولی بے باکی کو ہانپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے بوتل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کیسی ہو؟ ادائیگی کرتے اور اسٹیفنی کے لیے ٹپ چھوڑتے ہوئے اس نے بے تکلفانہ لہجے میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ اسٹیفنی نے آج بہت سکون کے ساتھ جواب دیا۔ بار میں زیادہ رش نہیں تھا۔ کاؤنٹر کے گرد اسٹول پر جارج حسب معمول دوسرے کنارے پر تھا۔ کسی دن میرے ساتھ ڈنر پر چلو، تمہیں ساتھ والے شہر کی جھیل کنارے ریستوران پر لے چلوں گا۔ پرمیت نے بغیر وقت اور موقع ضائع کیے ایک ہی سانس میں روانی کے ساتھ کہا۔ اچھا، واقعی؟ وہ مذاق اور تجسس کے ملے جذبات کے ساتھ بولی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے اسٹیفنی کی آنکھوں کے اندر دور تک جھانکتے ہوئے اپنی پیشکش دہرائی۔ ممکن ہے کسی دن چل دوں۔ ویسے تمہاری گرل فرینڈ کیرولین کا کیا حال ہے؟ فارغ کھڑی اسٹیفنی بھی آج باتوں کے موڈ میں تھی۔ وہ میری گرل فرینڈ تو نہیں، بس اس کے ساتھ ویسے ہی تعلق ہے، پرمیت نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت سے اوروں کی طرح یہ بھی اس کے ساتھ سوتا ہے، جارج کاؤنٹر کے دوسرے کونے سے سویا سویا بولا۔ اے یوکرینین شرابی، جاگ رہے ہو؟ میں سمجھا تھا بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے ہو۔ پرمیت نے جارج کی دخل اندازی کو خوشگوار انداز میں لیتے ہوئے اسے پکارا۔ کیرولین کے ایک ہی وقت میں انگنت بوائے فرینڈ ہیں۔ اسٹیفنی نے کیرولین کے ذکر پر اچانک ہی اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ پرمیت نے رائے دی۔ کیا مطلب تمہارا؟ اسٹیفنی نے پوچھا۔ ہاں، اس کا کام چل رہا ہے، اسے کیا پرواہ کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کون کون سوتا ہے، اور پھر بھلا وہ اس کی کون سی؟ جارج نے پھر لقمہ دیا۔ میرا اس پاک کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اسٹیفنی نے ایک دم سے جارج کی بات کاٹتے ہوئے یوں اعلان کیا جیسے وہ کسی اور کی تلاش کا اندیا دے رہی ہو۔ اے پرمی، اسٹیفنی کو گرل فرینڈ بنا لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں تو اس پر صدیوں سے عاشق ہوں، مگر یہ میری سنتی کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جارج ان کی گفتگو میں پوری طرح شریک ہو چکا تھا۔ میں اسٹیفنی کو ڈنر پر جانے کی دعوت تو دے ہی رہا ہوں۔ اسٹیفنی کے اسپاک سے تعلق ٹوٹنے کی خبر سے بے نیاز اس نے اپنی دعوت کو بالواسطہ طور سے دہرایا۔ نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کے ذاتی تعلقات سے لاپرواہ من ہی من میں اس سے شادی رچانے کے خواب دیکھے بیٹھا تھا۔ بھلا ہم پنجابیوں کو خواب دیکھنے سے کون روک سکتا ہے؟ اب تو یہ پھر اکیلی ہو گئی ہے۔ بھلا ہم پنجابیوں کے خواب پورا ہونے میں کون سی دیر ہوتی ہے؟ اس نے بیئر کا آخری گھونٹ چڑھایا اور شرابی جارج کے انداز میں اس سے دوسری بیئر کی بوتل کھولنے کو کہا۔ اسٹیفنی بیئر کی دوسری بوتل اس کے سامنے رکھ رہی تھی تو اس نے ڈنر کی دعوت کو ایک بار پھر دہرایا۔ اچھا، سوچوں گی، یہ کہہ کر اسٹیفنی شراب کی بوتلیں صاف کرنے چل دی۔ جارج کو مکمل طور پر ہوش میں دیکھ کر پرمیت نے اسے پول کھیلنے کی دعوت دی۔ گاڑی کا انجن ایک ہی جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہزاد نے بیک مرر سے پیچھے آتی ٹریفک کو دیکھا۔ اسے دو گاڑیاں کافی پیچھے دوڑتی دکھائی دی۔ وہ اپنی رکتی ہوئی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھما کر اسے سڑک کے ایک طرف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک طرح کا مضافاتی علاقہ تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا بونٹ کھولا۔ بونٹ کھولتے ہی ایک طرف سے اٹھتا دھواں اس کی طرف بڑھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا خاک پتا چلے گا، اسے تو گاڑیوں کے میکینکوں تک کا پتا نہیں تھا۔ کسی مقامی ٹو ٹرک کو کال کرنے کی غرض سے اس نے موبائل فون کی ڈائریکٹری کا ایمرجنسی نمبر ملایا اور ٹو ٹرک کے انتظار میں کھڑا منصوبے بنانے لگا کہ ٹو ٹرک والے کو گاڑی کسی دیسی ورک شاپ لے جانے کا کہے گا۔ اسے گاڑی کسی ولایتی ورک شاپ لے جانے میں خطرہ یہ نظر آتا تھا کہ اس کا بل توقع سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔
اگرچہ دیسی ورک شاپ کا بل بھی کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہاں پھر بھی بارگین کرنا ممکن ہے، اس نے سوچا۔ وقفے وقفے سے گاڑیاں شوں شوں کرتی پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے جس طرف گاڑی کھڑی کی تھی اس جانب ایک ڈھلان سی تھی، جبکہ سڑک کے پار وسیع بنجر میدان تھا۔ اس نے ڈھلان کی پتھریلی زمین پر خشک ہوتے گلے کی تھوک اگلی۔ اسے تھوک کی جھاگ ایک کنکری پر گرتی نظر آئی جو جھاگ کی طرح ہی بیٹھ گئی۔ البتہ اس کنکری کو دیکھ کر اسے اسلام آباد موٹر وے پر اپنی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہونے کا واقعہ یاد آیا۔ اس کے چاروں طرف پھیلے منظر نے ایک ثانیے کے اندر اسلام آباد کے ہائی وے کے پتھریلے کناروں کو اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ کسی کیلکولیٹر میں جڑے چپ نے جیسے دونوں زمینوں کے موازنے پر مساوی کا بٹن دباتے ہوئے اسے احساس دلایا کہ اس زمین کے سیارے کی کمپوزیشن تو ایک ہی ہے، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے۔ اتنے میں ٹو ٹرک کی گوں گوں کرتی آواز نے اس نسبتاً خاموش سڑک کی خاموشی اور اس کے دماغ میں چلنے والے خیالات کی تیزی کو اچک لیا۔ اس نے ٹو ٹرک والے سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا وہ کسی دیسی آٹو شاپ کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا۔ جب ٹو ٹرک والا اپنی پارکنگ بتیوں کے شور میں ایک آٹو شاپ کے کنارے شہزاد کی گاڑی کو پارک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو شہزاد نے اس علاقے کا جائزہ لینے کی خاطر ایک تائرانہ سی نظر ڈالی۔ بنیادی طور پر یہ پرانے گھروں کا ایک محلہ سا تھا۔ ان گھروں کی اوٹ سے فیکٹریوں کی نظر آنے والی چمنیاں کسی نیم صنعتی شہر کا پتہ دیتی تھیں۔ لاشعوری طور پر اس کے ذہن کی پھرکی میں اچانک ایک تصویر سی ابھری جس میں اسے دو چار ننگے بچنگے میلے سے بچے گلی کی دیواروں کے ساتھ بنی موریوں کے کنارے مٹی اور بنٹوں سے کھیلتے نظر آئے۔ اتنے میں پاس سے نیکر اور برا میں ملبوس ایک ادھیڑ عورت اپنی سائیکل چلاتی گزری تو اسے یاد آیا کہ گوجرانوالا میں نہیں، کینیڈا کے اس نیم صنعتی شہر کے اندر وہ گھوم رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور پتلی سائیکل سوار عورت جس کی عمر کا فوری کچھ اندازہ نہ ہو سکا، ٹو ٹرک والے کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی ورک شاپ کے اندر داخل ہوئی۔ شہزاد نے دیکھا کہ وہ عورت ورک شاپ سے نکلتے ایک دیسی نوجوان سے $10-20 کا نوٹ پکڑ رہی تھی۔ وہ دیسی نوجوان دراصل ان کے ٹو ٹرک کو پارک ہوتا دیکھ کر باہر آ رہا تھا۔ شہزاد ٹو ٹرک والے کو اس کی اجرت تھمانے کے بعد اس دیسی نوجوان کی طرف بڑھا۔ اس کی پنجابی لہجے کی انگریزی نے شہزاد کو انگریزی کے بجائے پنجابی میں جواب دینے پر آمادہ کیا۔ گڈی نو کی ہویا؟ شہزاد کو پنجابی بولتے دیکھ کر پرمیت نے پوچھا۔ شہزاد نے بونٹ کھول کر پرمیت کو وہ جگہ دکھانے کی کوشش کی جہاں سے دھواں اٹھا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کا گورا کاریگر بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ پرمیت نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ گورا میکینک غور سے انجن کی حرکت و ساکت دیکھنے لگا۔ کھر کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ انجن ایک جھٹکے کے ساتھ ہلا اور بند ہو گیا۔ جارج، مسئلہ سمجھ آیا؟ پرمیت نے ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتے پوچھا۔ جارج نے پرمیت کے مسئلے کے بارے میں کچھ بتایا جو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے شہزاد کو قطعی پلے نہ پڑا۔ پاجی کے ہویا ہے؟ شہزاد نے پرمیت سے جاننا چاہا۔ پرمیت نے اسے انجن کی خرابی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ شہزاد کو پھر بھی کچھ پلے نہ پڑ رہا تھا۔ وہ بالآخر یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا کہ کتنا خرچ آئے گا اور کب تک کام مکمل ہو جائے گا۔ پرمیت کے نرخ اسے معقول لگے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 3 گھنٹے کہاں گزارے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہیں پرمیت کے دفتر میں بیٹھ گیا اور اس کی ورک شاپ کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کاؤنٹر اور اسٹول کے بعد اس چھوٹے سے دفتر میں 3 کرسیاں اور ایک ٹوٹی میز پڑی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر 2-3 گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں ٹنگی تھی جن کے گرد گاڑیوں کی چابیوں کے گچھے لٹکے تھے۔ دفتر کے دائیں ہاتھ کا دروازہ ایک ہال میں کھلتا تھا جہاں پرمیت اور شہزاد نے مل کر گاڑی کو اندر دھکیلا تھا۔ اب جارج اس کے انجن پر جھکا کام شروع کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے آگے ایک پرانی فورڈ کار کھڑی تھی جس کی بریکوں پر ایک میلا کچیلا گورا کام کر رہا تھا۔ دفتر کے سامنے ایک کھلا صحن تھا جس کے ایک طرف 2 تباہ حال گاڑیوں کے پنجر کھڑے تھے۔ اس کے جائزہ لینے کے دوران پرمیت اس دفتر نما کمرے میں گھسا اور کاؤنٹر کے اوپر دھرے فون پر نمبر ڈائل کر کے کسی پرزے کے آرڈر دینے لگا۔ تواڈی گڈی لئی پرزے منگواریاں، پرمیت نے فون رکھتے ہوئے اطلاع دی۔ شہزاد نے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے کہنا چاہ رہا ہوں جو مرضی منگواؤ، جو مرضی کرو، سانو کی پتا۔ وہ اپنی متجسس اور سیلانی طبیعت کے ہاتھوں گاڑی سے زیادہ پرمیت، اس کی ورک شاپ، شہر، محلے اور اس عورت کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا جو اس سے نوٹ پکڑ کر گئی تھی۔ پرمیت فون پر آرڈر کر کے دوبارہ باہر ورک شاپ کے ہال کی طرف بڑھا۔ اس نے فورڈ گاڑی پر کام کرتے کاریگر کو کچھ ہدایات کی، پھر وہ شہزاد کی گاڑی کے بونٹ پر جھک کر جارج کی مدد کرنے لگا۔
चंद मिनटों के अंदर उसकी गाड़ी के पुर्जे की सप्लाई देने एक गाड़ी पहुंच गई। परमीत और जॉर्ज दोनों बैक वक्त पुर्जे को वसूल करने दफ्तर में आए। आनन फानन उस छोटे से कमरे में जैसे भीड़ लग गई। दोनों डब्बा खोलकर पुर्जे की जांच पड़ताल करने लगे। पाजी, पुर्जा ठीक मिल गया है, परमीत ने शहजाद को इत्मीनान दिलाने की गरज से इत्तला दी। शहजाद ने फिर इस बात में सर हिलाया। जॉर्ज पुर्जे को लेकर बाहर चला गया। परमीत अंदर दफ्तर में ही बैठा रहा। इससे पहले कि शहजाद परमीत से कोई बात करता, परमीत ने पूछा, इत्थे हैमिल्टन रहंदे हो? नहीं, मैं टोरंटो तो आया हां, शहजाद ने बताया। किसे नू मिलन लई? नहीं, नियागरा दी सैर कर दिया, इस पासे निकल आया। लगदा है उधर दे पंजाब दे हो। हाँ, मैं लाहौर तो हूं। बातें शुरू करते ही शहजाद को परमीत के बारे में कुछ मालूम हुआ और ये भी पता चला कि उस शहर में काफी देसी रहते हैं। अलबत्ता उस इलाके में कम रहते हैं जहां उसकी वर्कशॉप थी। इसी दौरान वो औरत दफ्तर में घुसी जिसको शहजाद ने परमीत से नोट पकड़ते देखा था। वो शहजाद को परमीत का कोई करीबी दोस्त समझते हुए बहुत तपाक के साथ हेलो हाय करने लगी। फिर उसने काउंटर पर झुककर परमीत से खुसुर पुसुर के अंदाज में कुछ इस्तफसार सा किया। शहजाद को यूं समझ आई कि जैसे वो जानना चाह रही हो कि परमीत बार को चल सकता है या नहीं। करीब से उस औरत को देखने पर शहजाद को अंदाजा हुआ कि ये कोई 30-32 के पेटे में हो सकती थी। पतली नाजुक अंदाम नेटिव इंडियन खदो खाल की उस लड़की के लंबे काले बाल उसकी आधी नंगी कमर को ढांप रहे थे। महाराज, हमारे इस मोहल्ले में एक बार है, मैं जरा थोड़ी देर के लिए उधर जा रहा हूँ, अगर आना है तो आ जाओ। अभी आपके काम पर करीब 2 घंटे लग जाएंगे और वो आदमी इस पर मुसलसल काम कर रहा है। अब की बार परमीत ने पंजाबी और हिंदी के लहजे में उर्दू बोली। जरूर, ये कहकर शहजाद भी साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। शहजाद को साथ आते देखकर उस लड़की ने खुश अखलाकी के साथ अपना नाम कैरोलीन बताते हुए मुसाफे की गरज से हाथ आगे बढ़ाया। शहजाद ने भी खुशदिली से हाथ मिलाया। कैरोलीन इज माई स्वीट हार्ट, परमीत ने मुस्कुराते हुए अपनी जानिब से उस लड़की का तारुफ कराया। शहजाद उन दोनों के पीछे कदम बढ़ाता बाहर निकलने लगा तो जॉर्ज की आवाज आई, ए परमी, तुम फकिंग मेरे बगैर जाने लगे हो? अच्छा नहीं। फिक्र ना करो, काम खत्म करके मुझे इत्तला दो, मैं तुम्हारे लिए बियर खरीदूंगा। परमीत ने यूं जवाब दिया जैसे कोई घड़ा घड़ाया सा जुमला बोल रहा हो। वर्कशॉप से निकलते ही शहजाद को सामने एक पुरानी तर्ज की स्पोर्ट्स बार का बोर्ड नजर आया। अंदर दाखिल होने पर बार काउंटर के गिरदा गिर्द 6-7 ग्राहक विराजमान दिखाई दिए। कोने की एक मेज पर 3 लोग कंस्ट्रक्शन के यूनिफॉर्म में बैठे ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे थे। शहजाद को लगा कि जैसे उभरती हुई छातियों वाली बार टेंडर परमीत और कैरोलीन के साथ एक ईस्ट इंडियन को जरा ज्यादा ही घूर कर देख रही थी। शहजाद ने अपने ग्रुप के साथ बार के काउंटर के करीब जाते ही शाइस्तगी के साथ उसे हेलो कहा। पाजी, क्या पियोगे? परमीत ने पंजाबी में पूछा। मैं आपकी दोस्त और आपके लिए खरीदता हूँ, आप बताएं, शहजाद ने जवाबन अंग्रेजी में कहा। नो नो, लेट मी बाय यू, परमीत ने अब की बार अंग्रेजी में इसरार किया। दोनों की तकरार के दौरान बार टेंडर ने परमीत और कैरोलीन के लिए बियर्स काउंटर पर रखते हुए कहा, पैसे तो तुम में से कोई भी दे देना, मुझे ऐतराज नहीं। पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन सी बियर लोगे? इन दोनों का तो मुझे पहले ही पता है। उसने अपनी मर्जी की बियर थामी और परमीत के इसरार के बावजूद पहले राउंड के ड्रिंक्स की अदायगी करने पर कामयाब हो गया। तीनों अपने ड्रिंक्स थामे दीवार की तरफ लगी मेज पर जा बैठे। बैठते ही कैरोलीन इस बात पर हैरत का इजहार करने लगी कि शहजाद और परमीत के पहली बार मिलने के बावजूद उसे एहसास नहीं हो पा रहा था कि शहजाद उसका कोई राह चलता गाहक है, बल्कि उसे यूं नजर आ रहा था कि जैसे दोनों देरीना दोस्त हैं। अगर पंजाबियों के दिल मिल जाएं तो इसी तरह मिलते हैं, परमीत ने बियर के पहले घूंट के साथ यूं मदहोश होकर कहा कि जैसे वो सुबह से पीता चला आ रहा हो। शहजाद ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो उस बार का जायजा लेते हुए सोच रहा था कि यह जगह किसी स्पोर्ट्स बार के बजाय इंडस्ट्रियल कैफे जैसी दिखाई देती थी। ताहम उसे उस जगह इस तरह की अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था जिस तरह की अजनबियत वो टोरंटो की बारों में महसूस करता था, अगरचे वो बाकायदगी से बारों पबों में जाने का आदी न था। तुम टोरंटो में कहाँ रहते हो? शहजाद को मुसलसल सोचते देखकर कैरोलीन ने पूछा। मैं पहले नॉर्थ यॉर्क में रहता था, अब मिसिसागा में रहता हूँ, उसने हौले से जवाब दिया। हमारा ये इलाका कैसा लगा? अच्छा लगा है, अलबत्ता मुझे अपना इलाका कुछ जाली जाली सा, यानी गैर कैनेडियन सा लगता है। शायद इसकी वजह यह है कि उस इलाके में मेरे जैसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं जो सब गुज़श्ता चंद सालों के दौरान आए हैं। अपने आप को और उन सबको देख देख कर यह एहसास नहीं होता कि मैं कनाडा में रहता हूँ। अलबत्ता तुम्हारा शहर मुझे पुराने बासियों से रचा बसा लगता है। एहसास होता है कि जैसे यहाँ के लोग यहीं के हैं।
अलबत्ता शहर का ये हिस्सा काफी पुराना लगता है। शहजाद को अपना बयान जैसे खुद ही गूंजता सुनाई दिया। तो फिर इधर ही आ जाओ, कैरोलीन बोली। महाराज, इधर सड़े से शहर में आकर क्या करना है? परमीत कैरोलीन की परवाह किए बगैर उर्दू में लपकुशा हुआ। मुझे तो ऊपर पहाड़ों का इलाका अच्छा लगता है, कंट्री साइड, छोटे छोटे कस्बे। मेरा बस चले तो उधर जा रहा हूँ। शहजाद परमीत के जुमले को नजरअंदाज करते हुए कैरोलीन से मुखातिब हुआ। कैरोलीन जवाब में मुस्कुराई। पाजी, वापसी उते लेक थानी जाना, असल कनाडा उधर जे, वदिया वदिया बड्डे बंगले, अमीर अमीर गोरे। परमीत उन दोनों की बातचीत से बेनियाज अपनी तरफ से लुक्मे दिए जा रहा था। मुझे तो हर वो जगह पसंद है जहाँ बियर और सुट्टा मिले। कैरोलीन ने अपनी पसंदीदगी की तरजीह बयान की। स्मोक, बियर, पार्टी एंड सेक्स, नथिंग एल्स। परमीत ने कैरोलीन पर हल्का सा तंज करना चाहा, मगर कैरोलीन ने मुस्कुराकर इस बात को तंज के बजाय एक दाद के तौर पर वसूल किया। चलो थोड़ा पोल खेलते हैं, फिर वापस वर्कशॉप को चलते हैं। परमीत खाली बियर की बोतल को उंगली से घुमाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो बियर की एक एक और बोतल लेकर पोल मेज की तरफ बढ़ गए। मैं तो वाजबी सा खिलाड़ी हूँ, शहजाद ने पहली स्ट्राइक खेलने से पहले ऐलान किया। मुझे भी इसने सिखाया है, परमीत ने कैरोलीन की तरफ इशारा किया। पहले तुम दोनों खेलो, मैं उससे खेलूंगी जो तुम में से जीतेगा। कैरोलीन ने दूसरी स्टिक परमीत को थमाते हुए कहा। ओए, हम लड़की के चक्कर में लड़ने वाले नहीं, परमीत ने उर्दू में कहा। कोई घंटा भर पोल खेलने के बाद वो वर्कशॉप को चल पड़े। मेरा ख्याल है कि आपकी गाड़ी का काम खत्म होने वाला होगा, परमीत ने याद दिलाया। वापस वर्कशॉप पहुंचने पर काम का हिसाब बनाते हुए परमीत ने उसे थोड़ी सी रियायत भी कर दी। आइंदा गाड़ी खराब हो तो इधर ही लाना, कैरोलीन हंसते हुए बोली। गाड़ी खराब होना जरूरी नहीं, कभी भी इधर से गुजरो तो चाय पानी या बियर के लिए जरूर रुकना महाराज, परमीत ने जैसे ताकीद सी की। वापसी पर शहजाद सोच रहा था कि इत्तेफाकन अच्छे लोग मिले हैं। शहजाद अब हर दूसरे तीसरे हफ्ते परमीत से मिलने हैमिल्टन जाने लगा। उसे अंदाजा हुआ कि परमीत का ताल्लुक उसके वर्कशॉप के सामने की बार गर्ल स्टेफनी से बनता जा रहा था। जब भी शहजाद परमीत की तरफ जाता तो वो उसको बार ले जाता, जहां हफ्ते की शाम होने की वजह से अच्छा खासा रश होता था। एक शाम स्टेफनी को काम से छुट्टी थी। उस शाम वो मामूल से ज्यादा बनी ठनी दाखिल हुई तो बहुत सारे ग्राहकों की तवज्जो का सबब बनी। वहां काम करने के सबब तकरीबन सभी लोग उसे जानते थे, इसलिए चंद एक ने उसे अपनी मेज पर भी बैठने की दावत दी। वो एक मेज पर थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन जल्द ही उनको बाय बाय कहकर परमीत और शहजाद की मेज पर आ बैठी, जिससे शहजाद को मजीद अंदाजा हुआ कि शायद उनके ताल्लुक का मामला काफी आगे जा चुका है। शहजाद उन दोनों को बैठे रहने का इशारा करके बियर की बोतलें लाने बार की तरफ बढ़ा। वापसी पर स्टेफनी ने उसका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उसे परमीत आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बियर का पहला घूंट भरते हुए शहजाद ने स्टेफनी के सरापे का जायजा लिया। वो कैरोलीन की निस्बत काफी भरे जिस्म की औरत थी, अलबत्ता उम्र के एतबार से उसका हाल भी कैरोलीन जैसा था। दोनों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो 30 के पेटे में थी या 40 के, हत्ता कि उन पर 20वें साल के किसी सिन का भी गुमान हो सकता था। कैरोलीन के खदोखाल वाज़ह तौर पर अमरीकी इंडियन के थे, जबकि स्टेफनी के चेहरे और बालों की रंगत लाली से सफेदी की तरफ माइल होती नजर आ रही थी। उसकी बारीक आंखें उसके दरमियाने साइज के ऊपर जैसे अंदर को धसी हुई थी। शहजाद चाह रहा था कि तासुरात से खाली चेहरे वाली ये औरत बातें करना शुरू करे, ताकि वो उसकी शख्सियत का मजीद अंदाजा लगा सके। उधर कब चलना है? स्टेफनी ने परमीत से पूछा। शायद उन्होंने पहले ही कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखा है। मैं ऐसे ही बीच में आन टपका, शहजाद ने सोचा। थोड़ी देर बाद परमीत बोला, क्यों ना हम अपने दोस्त को भी साथ ले चलें? उसने शहजाद की तरफ इशारा करते हुए इजाजत तलब करने से ज्यादा इत्तला पहुंचाने के अंदाज में कहा। नहीं, तुम लोग चलो, मैं तो ऐसे ही बगैर इत्तला के आ पहुंचा हूँ। वैसे भी मेरा इरादा ऊपर पहाड़ियों की तरफ निकलने का है। शहजाद ने परमीत के स्टेफनी के साथ गंवार से लहजे के तासुर को जायल करना चाहा। तुम भी हमारे साथ आओ, ऊपर की पहाड़ियों में क्या रखा है, खास तौर पर वीकेंड की शामों को। हम साथ वाले झील किनारे शहर की तरफ जा रहे हैं। स्टेफनी ने शहजाद को प्रोग्राम बताते हुए साथ चलने की दावत दी। आर यू श्योर? शहजाद ने फिर से उनके दिल की मंशा जानना चाहिए। हाँ पाजी, चलो चलो, परमीत ने आपके पंजाबी में कहा। ओह यस, स्टेफनी ने भी परमीत की पंजाबी को नजरअंदाज करते हुए जैसे हाँ में हाँ मिलाई। वो उठने लगे तो शहजाद को कैरोलीन एक भोंडी सी शक्ल वाले शख्स के साथ बार के अंदर घुसती नजर आई।
शहजाद पर नजर पड़ते ही कैरोलिन लपक कर उसकी तरफ बढ़ी, जैसे उसे अपने पार्टनर की परवाह ही न हो। हे यंग मैन, हाउ आर यू? वो मामूल की तरह बत्तीसी निकालते हुए मुखातिब हुई। आई एम फाइन, शहजाद ने उसके बढ़ते मुआनके का जवाब दिया। ए गर्ल, हाउ आर यू? स्टेफनी ने कैरोलिन से उसका हाल चाल यूं पूछा जैसे वो उसका जवाब जानना ना चाह रही हो। कैरोलिन ने स्टेफनी को अपना हाल बताने की बजाय अब की बार परमीत से जानना चाहा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। परमीत उसके इस्तफसार को नजरअंदाज करता हुआ शराबी सी चाल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। स्टेफनी भी उसके पीछे लपकी। शहजाद ने कैरोलिन के हाथ को हौले से छोड़ते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तो बस इनके साथ निकल रहा हूँ, बाय, फिर मिलेंगे। कैरोलिन स्टेफनी और परमीत के रूखेपन को महसूस किए बगैर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बियर लेने बार की तरफ चल दी। शहजाद के लिए ये एक नया शहर था। इस शहर के खूबसूरत और साफ सुथरे डाउनटाउन में परमीत और स्टेफनी के साथ चहलकदमी करता हुआ वो सोच रहा था कि यह शहर पोस्ट कार्ड पर छपी किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा है। पाजी, मैं इधर शिफ्ट होने का प्लान बना रहा हूँ, परमीत ने इंकशाफ किया। व्हाट? स्टेफनी ने परमीत की हिंदी पंजाबी से बेजार होकर जानना चाहा कि वो क्या बोले जा रहा है। मैं इसे बता रहा था कि हम इस शहर में मुंतकिल होने का प्रोग्राम बना रहे हैं, परमीत ने स्टेफनी को अंग्रेजी में बताते हुए मैं को हम में बदल दिया। तुम देख ही रहे हो ये शहर कितना मुख्तलिफ है, खास तौर पर उस फकिंग जगह से जहां से हम आ रहे हैं। स्टेफनी ने चहक कर शहजाद को मुखातिब करते हुए कहा। इसी तरह की बातें करते हुए वो एक रेस्तोरां नुमा बार में घुस गए। वहां बैठते ही परमीत ने चिकन विंग्स और नाचोस वगैरह का ऑर्डर देते हुए वाज़ह किया कि उसे भूख बहुत लग रही है। बियर का जग सामने आते ही परमीत ने प्लान की तफसीलात खोलना शुरू की। मुझे वर्कशॉप का गाहक मिल गया है, उसको बेचकर मैं इधर सेकेंड हैंड टायरों की दुकान खोलने का इरादा रखता हूँ। मैं और स्टेफनी यहाँ छोटा मोटा घर खरीद लेंगे और हम शादी इधर मुंतकिल होने के बाद करेंगे। परमीत ने एक ही सांस में इन तफसीलात का खाका खींच दिया। शहजाद को अंदाजा नहीं था कि परमीत और स्टेफनी के ताल्लुकात यहाँ तक पहुंच चुके थे कि वो शादी का फैसला भी कर चुके थे। उसने अपना बियर का ग्लास लहराकर दोनों को मुबारकबाद दी। सच्ची बात बताऊं, मैं तो तुम इमिग्रेंट्स की मेहनत और जज्बे की बहुत कायल हुई हूँ, स्टेफनी ने जज्बात में भर्राई आवाज के साथ कहना शुरू किया। मुझे तुम्हारा तो कोई खास पता नहीं, मगर परमी तो अभी हाल ही में हमारे इलाके में आया था। उसने देखते देखते ऑटो वर्कशॉप खरीद ली, हमारे इलाके के बेकार लोगों को काम पर लगाया। शुरू में हमने इस ईस्ट इंडियन को अपने इलाके में आने पर नापसंद ही किया था, कुछ तो शायद अभी भी करते हो, मगर ये सबके साथ मिलजुल कर रहा। अब अक्सरियत इसे कबूल कर चुकी है और अब परमी इस अमीर शहर में मुंतकिल होने का प्लान बना रहा है ना कमाल की बात। हमारे इलाके के अक्सर लोग तो इधर ख्वाबों में भी मुंतकिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अक्सरियत में बढ़ चढ़कर काम करने का हौसला और जज्बा ही नहीं। मुझे इसीलिए यह शख्स अच्छा लगा। अगर मैं इससे ना मिलती तो शायद मैं भी जिंदगी में किसी तब्दीली का ना सोचती। इसने मुझे आगे से आगे बढ़ने का जज्बा और हिम्मत दी है। यहाँ तक बोलते ही उसकी आवाज जज्बात से रुन सी गई। परमीत ने स्टेफनी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर थपथपाया। ओके फ्रेंड्स, मुझे अब चलना है, तुम लोग अपना अच्छा वक्त गुजारो, शहजाद ने बियर का आखिरी घूंट भरते हुए अचानक ऐलान किया। शहजाद उनको अलविदा कहकर बार से निकला तो अपनी बियर के असर को जायल करने की गरज से उस तस्वीरी शहर के खूबसूरत डाउनटाउन में टहलने की गरज से एक समत को चल पड़ा। चलते हुए ये ख्याल मुसलसल उसके जहन से चिपका रहा कि तसव्वुराती जन्नत को अगर हकीकत के रूप में देखना हो तो आदमी इधर को आ निकले। फिर उसे याद आया कि इस तरह के कई तस्वीरी नौयत के इलाके तो वो टोरंटो के अंदर और गिरदो नवाह में भी देख चुका था। उसका जी चाहा कि वो यहीं कहीं फुटपाथ पर अपने कैनवस को फैलाकर इस जीते जागते शहर की जीती जागती तस्वीर बनाए। अचानक उसके जहन में उसके पसंदीदा फलसफी एपिक्यूरस के तसव्वुराती शहर की शक्ल उभरी। खुशहाल, सेहतमंद, बेफिक्रे और खुश शक्ल लोग अमन, शांति और मुस्कुराहट बिखेरते चहलकदमी कर रहे थे। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों और खिलौनों के साथ उस तस्वीर में मजीद रंग सजाते दिखाई दे रहे थे। आसपास के कैफे, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर फिजा में कई तरह की खुशबुएं बिखेर रहे थे। सफाई सुथराई का यह आलम था कि सड़कों, फुटपाथों और बगली रास्तों पर मुहावरे के मिज़दाक कहीं तिनका तक भी गिरा नजर न आता था। हवा और फिजा यूं साफ शफाफ थी कि बीमार आदमी के नथने और फेफड़े साफ होते चले जाएं। इत्तेफाक से वो दिन भी बहार के थे। इस शहर की सड़कों पर सर्दियों, गर्मियों और खिजा की रुतों में भी आकर देखूंगा कि कैसा लगता है, उसने सोचा। फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह के हसीन गली कूचे इस मुल्क में जा बजा फैले हुए हैं
اور جب بھی کبھی اس کا اس طرح کے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا تھا اس کے اندر بیک وقت شادابی و بیتابی کے سر اسی طرح بج اٹھے تھے، اور وہ اس طرح کے ہر علاقے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیوں نہ ادھر ہی جا بسے۔ میں بھلا اکیلا آدمی بیک وقت کتنی جگہوں پر رہ سکتا ہوں۔ سڑک کنارے پڑی بینچ پر سستانے کی غرض سے بیٹھتے ہوئے اس نے ہر بار کی طرح جی ہی جی میں دہرایا۔ اسے اپنا اپارٹمنٹ اور اس کا گرد و پیش یاد آیا۔ میرا علاقہ بھی کتنا اچھا ہے، ایسا پکٹوریل تو نہیں مگر پریکٹیکل ہے، ہر ضرورت کی شے پاس ہے، پھر کام کی جگہ قریب ہونے کی وجہ سے بھاری ٹریفک میں گھنٹوں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ کام کی جگہ یاد آنے پر اسے ٹاؤن شپ لاہور کا انڈسٹریل ایریا یاد آتا تھا۔ اچانک اسے قالینوں والے بٹ صاحب والا اسکاربرو محلہ یاد آیا، جہاں ہر بار گزرتے اسے کاچو پورا لاہور کی یاد آتی تھی۔ اس ملک میں جہاں دنیا بھر کی کمیونٹیاں آباد ہیں وہاں ہر ملک کا رنگ بھی ہے۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ جس علاقے میں جیسی امیگرنٹس کمیونٹیاں آباد ہو رہی ہیں وہ اس علاقے کو اپنے بیک ہوم کا رنگ دیے جا رہی ہیں۔ اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ سوچ نہیں رہا بلکہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کوئی اس کو گھور کر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن پاس گزرتے اس کی اپنی عمر کے جوڑوں کے ایک گروپ پر اس کی توجہ مبذول ہو گئی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ 6-8 افراد کے گروپ میں کہیں وہ بھی شامل ہو جائے۔ اس نے کتنی بار سوچا ہے کہ اس طرح کا کوئی گروپ اسے بھی تشکیل دینا چاہیے، مگر کاموں میں پھنس کر ایسا کرنا بھول جاتا تھا۔ جب کبھی وقت ملتا ادھر ادھر کی جگہوں کی ہوا خوری کے لیے نکل کھڑا ہوتا، کبھی حسن وغیرہ سے ملنے چلا جاتا، اور اب کچھ عرصے سے ہر ہفتے چھٹی کے روز پرمیت کے ہاں نکلنے کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم اس نے 2 لڑکیوں اور لڑکوں کے ایک اور گروپ کو پاس سے گزرتے دیکھا تو خیال کیا کہ اس طرح کے گروپ کا حصہ بننے سے ہی اس جنتی شہر کا نقشہ پورا ہوتا ہے۔ مجھے ذہنی طور پر کہیں مقیم ہونا بھی ہے یا نہیں، اس نے خود سے سوال کیا۔ ابھی چند ماہ پہلے مونٹریال 2 روز کے لیے گیا تھا تو وہاں منتقل ہونے کا ارادہ بھی برا نہ لگا تھا۔ پرمیت سے گپ شپ کے دوران کبھی وہ نیاگرا فالز کے کنارے بس جانے کا سوچتا تھا اور کبھی لیک ایری سے ملحقہ قصبوں میں جا بسنے کا خیال کرتا تھا۔ کیسی غیر عملی سوچیں ہیں، اسے خیال آتا۔ بیچ بیچ میں اسے پاکستان کے گلی کوچے بھی یاد آتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا جی وہاں واپس جانے کو نہیں مچلتا تھا۔ کیسا غیر محب شخص ہوں، مگر اب تو کینیڈا میرا وطن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک بار پھر سے خود سے یہ طے کرتے ہوئے اسے پاکستان سے اپنے دوستوں کی ای میلیں اور فیس بک پر پیغامات یاد آنے لگے جن میں ہر کوئی اسے بے وفا قرار دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو ٹولیوں کی شکل میں ادھر ادھر آتے جاتے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اسے تنہائی کے شدید احساس نے گھیر لیا۔ اس نے فوراً جیب سے موبائل فون نکال کر حسن کا نمبر ڈائل کیا۔ ارے یار، میں صوفی صاحب کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ ہمارا ارادہ آج ڈاؤن ٹاؤن میں آوارہ گردی کرنے کا ہے۔ حسن نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، مگر مجھے تم تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ فون بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے سوچنے لگا کہ کسی من پسند گروپ کا حصہ بننے کی بجائے حسن اور صوفی کے ساتھ گپ شپ لگانے چلا ہوں، کہیں ہم گے تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی دبی لکیر ایک دم سے ابھری۔ صوفی سے وہ پہلے بھی چند بار مل چکا تھا۔ شہزاد کو وہ اپنا ہم خیال سا لگتا تھا، گو عمر میں اسے 10-12 برس بڑا تھا۔ البتہ حسن کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا، وہ اپنی سوچوں اور باتوں کے پیترے بدلتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک روشن خیال نوجوان تھا۔ یار، تمہیں سب سے پہلے ایک بری خبر سناتا ہوں، حسن اس کے بیٹھتے ہی بولا۔ شہزاد نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ چودھری صداقت کو کسی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسن کی بات سن کر شہزاد کو ایک دھچکا سا لگا۔ اگرچہ صداقت کو ملے ایک زمانہ بیت گیا تھا اور شہزاد اس کے طور اتوار سے خاصا بیزار بھی تھا۔ ان دنوں اس کی چودھری سے ملاقاتیں اس لیے ہو جاتی تھیں کہ وہ اس کے ہمسائے میں رہ رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آج کے اخبارات میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کی خبر شہ سرخی کے طور پر چھپی ہے اور اس کے مبینہ قاتلوں میں چودھری صداقت کی تصویر بھی ہے۔ کیا تمہارا اس سے رابطہ نہیں تھا؟ حسن نے پوچھا۔ تب سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا جب سے میں نے اس علاقے کو چھوڑا ہے، شہزاد نے وضاحت کی۔ بہرحال خبروں کے مطابق ان مبینہ قاتلوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو تب گولی ماری جب وہ اپنی ٹیکسی کے اندر ایک پلازا کی پارکنگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حسن نے مزید تفصیلات بتائیں۔ میں شاید اس شخص سے کبھی نہیں ملا۔ صوفی نے بھی اس گفتگو میں حصہ لینا چاہا۔ نہیں، شاید آپ نہیں ملے تھے۔ حسن اور شہزاد صوفی کو اپنے سے بڑا جانتے ہوئے اسے ہمیشہ آپ ہی کہتے تھے، مگر وہ آپ لوگوں کا غالباً دوست تھا۔
बहरहाल अफसोस हुआ, सूफी ने तकल्लुफन कहा। दोस्त तो वो हमारा भी नहीं था, मगर मेरा पुराना हमसाया और मिलने वाला था। मुझे तब भी उसकी हरकतों से लगता था कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शहजाद ने सर झुकाकर चौधरी को याद करते हुए कहा, क्या वो ड्रग वगैरह का काम करता था? सूफी ने महज फकत बात से बात बढ़ाना चाहिए। नहीं, लोगों की स्मगलिंग वगैरह में मुलव्विस था, शहजाद ने बताया। यार, बहरहाल जो भी हुआ बुरा हुआ। हसन ने यूं कहा जैसे इस तरह के हादसात पर इस तरह ही अफसोस किया जाता है। फिर बात बदलते हुए बोला, अच्छा, अब डाउनटाउन की तरफ निकलते हैं। हाजी साहब ने अपनी धोती के पल्लू को ढीला करके अपना हाथ रानों पर फेरने के बाद नलों पर खारिश की। नलों को खुजाने के दौरान आसपास के आज़ा में जोर की खारिश छिड़ गई। उन जेरेनाफ आज़ा को दोनों हाथों से मसलने के दौरान हाजी साहब की आंतों ने बैक वक्त सुकड़ और फैलकर एक धमाके के साथ हवा खारिज की। उन्हें एकदम पेट से हवा खारिज होने के बाद एक सुकून सा मिला। उसी सुकून के तशक्कुर में उन्होंने नाक रजाई के अंदर घुसेड़ी। खारिज शुदा हवा की तेज मिर्चीली बू ने उन्हें नाक फौरन रजाई से निकालने पर मजबूर किया। हाजी साहब ने मैट्रेस पर लेटे लेटे उन्हीं खुजाने वाले हाथों को अपने चेहरे और गंजे सर पर एक तवाफ की तरह रगड़ा। उनकी तेज हसास नाक ने जब उनके हाथों में रची नलों और नाफ तले आज़ा की बू सूंघी तो उन्होंने उस बू को दोबारा महसूस करने के लिए अपने हाथों को नाक पर 2-3 बार मजीद फेरा। इस सारे अमल से हाजी साहब का ध्यान अपनी माली परेशानियों से थोड़ी देर के लिए हट गया। वो दीवार के साथ लगे मैट्रेस पर थोड़ा सीधे हुए और टेक लगाकर बैठ गए। 8वें मंजिल के उस अपार्टमेंट से नीचे निगाह डाली तो 2 रुया सड़कों पर हस्बे मामूल आने जाने वाली ट्रैफिक गाड़ियों की कतार की शक्ल में नजर आई। सामने क्लॉक पर नजर पड़ी तो दुरुस्त वक्त का इल्म हुआ। मगरिब की नमाज का वक्त होने में 25 मिनट बाकी हैं। हाजी साहब को असर की नमाज पर न उठ सकने का मलाल तो न हुआ, लेकिन यह ख्याल आया कि जहनी परेशानियों के बोझ तले ऐसी आंख लगी थी कि 4-5 घंटों की नींद के बाद भी ठीक से खुल न रही थी। ठंडी हवा के एक झोंके ने हाजी साहब की पलकों को दोबारा बोझल कर दिया। वो बेबस से होकर दोबारा लेट गए। इस बार औंधे लेटे लेटे मगरिब की नमाज कज़ा करने की नियत जी ही जी में बांधने लगे। बीच बीच में ख्याल आता कि हिम्मत करके उठें। नीचे बिल्डिंग के तहखाने में बनी जमात की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने का जी नहीं चाह रहा था। एक बार सोचा कि कम से कम अपार्टमेंट में ही नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन नमाज के ख्याल से हाजी साहब का जी और बोझल हो जाता। इस बोझलपन में उन्हें चौधरी सदाकत की धमकी खाई जा रही थी कि वो कनाडा की पुलिस को उनकी इंसानों की स्मगलिंग के कारोबार के बारे में सबूत फराहम करके जेल भिजवाएगा। चौधरी की धमकी याद आते ही उन्हें दिल डूबता महसूस हुआ। वो घबराकर उठ बैठे। अब वो पेट से निकलने वाली गैस के नतीजे में मिलने वाले सुकून को भूल गए थे। उनका दिमाग उन 3 लोगों की स्मगलिंग के सौदे में फिर उलझ गया। 45 लाख रुपए में से अभी तक उन्हें 21 लाख रुपए वसूल हुए थे, जिनमें से 9 लाख लाहौर एयरपोर्ट पर सरकारी एहलकारों को दिए। 3 लाख एहलकारों से राब्ता करवाने वाले एजेंट ने लिए। उसी एजेंट ने 6 लाख दुबई में एयरपोर्ट के मुआविन अमले को दिलवाए। हाजी साहब ने यह धंधा उसी एजेंट के साथ पैदा होने वाले ताल्लुक की बिना पर शुरू किया था। ये एजेंट हाजी साहब के साबिका दौरे लाहौर के दौरान दुबई की परवाज से मुतारिफ हुआ था। 3 घंटे की परवाज के दौरान उसने हाजी साहब को उनके कनाडा के पासपोर्ट की अहमियत का एहसास दिलाते हुए उन्हें यह कारोबार करने पर आमादा कर लिया। आपकी जमात के अक्सर लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और आपकी जमात के कई लोग ये कारोबार कर रहे हैं। आप भी कीजिए। बंदे आप ढूंढें, लाहौर से दुबई और दुबई से बाहर मैं निकलवा दूंगा। बंदे सीधे कनाडा पहुंचेंगे। रेट फी बंदा 15 लाख रुपए मांगिए, लोग हंस कर देंगे। एक बार आपके बंदे पहुंच गए फिर बंदों और रुपयों की कतार लग जाएगी। हाजी साहब के तीनों बंदे लाहौर से दुबई पहुंच गए, मगर दुबई से लंदन वाली परवाज में बैठने से पहले अपनी जाली दस्तावेजात पर ब्रिटिश एयरवेज के अमले के हाथों पकड़े गए। हाजी साहब खुद भी उन लोगों के साथ थे, लेकिन अपने एजेंट के मशवरे की वजह से उन्होंने अपनी बुकिंग दुबई से फ्रैंकफर्ट के लिए करवा रखी थी। वहां एक दिन कयाम के बाद उन्होंने कनाडा के लिए रवाना होना था। दुबई से उनके बंदों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। हाजी साहब परेशान हाल फ्रैंकफर्ट पहुंचे और फ्रैंकफर्ट से टोरंटो आए। टोरंटो पहुंचते ही उन 3 बंदों के वाली वारिस चौधरी सदाकत ने हाजी साहब को आड़े हाथों लिया और पैसों की वापसी का मुतालबा किया। हाजी साहब ने बोतेरा समझाया कि भाई, मैंने ये रकम जेब में नहीं डाली, ये रकम तो दुबई और लाहौर एयरपोर्ट पर बंदों को निकलवाने के लिए खर्च की थी।
जो बकिया 24 लाख बंदों के पहुंचने पर लेने थे वो तो मैंने नहीं लिए, मगर चौधरी ने साफ कह दिया, हाजी साहब सीधी बात है, हमें हमारे 21 लाख वापस चाहिए या फिर बंदे दोबारा अपने खर्च पर मंगवाओ। हाजी ने पाकिस्तानी एजेंट से राब्ता किया। इस काम में ऐसा हो जाता है, मैं बंदों को निकालने की दोबारा कोशिश करता हूँ। इस बार लाहौर एयरपोर्ट पर कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर फिर से खर्च करना होगा और पहले से थोड़ा ज्यादा। एजेंट ने बताया, मैं मजीद खर्चा कहाँ से करूं? हाजी साहब फोन पर सटपटा कर बोले, हाजी साहब कनाडा में बैठे हो, 20-25 हजार डॉलर के लिए न मरे जाओ, और याद रखो इस कारोबार में 2-4 लाख डॉलर तो जेब में होने चाहिए। हाजी साहब पैसे के बगैर कोई कारोबार नहीं चलता, गश्तियां भी सप्लाई करना हो तो पीछे पैसे चाहिए, कुछ पता नहीं चलता किस वक्त जुर्माना भरना पड़ जाए। हाजी साहब ने सोचा कि मैं अब एजेंट को क्या बताऊं कि मेरा अपना गुजारा वेलफेयर के 520 डॉलर में होता है। अलबत्ता हाजी को एजेंट का गश्तियों की सप्लाई वाला जुमला याद आया तो शदीद ज़हनी तनाव की कैफियत में चंद लम्हों के लिए कमी वाक़ई हुई। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में टीवी के सामने बैठ गए। अभी दामाद, बेटी और उनके बच्चे नहीं लौटे थे। सब दोपहर से ही जामिया मिशन पहुंचे हुए थे और कहकर गए थे कि जामिया से इशा की नमाज पढ़कर और रस्ते में कहीं से खाना खाकर लौटेंगे। हाजी साहब गश्तियों की सप्लाई वाले जुमले को याद करके अपने ज़हनी तनाव की कैफियत को मजीद कम करने की ख्वाहिश में टीवी के ऐसे चैनल ढूंढ रहे थे जहां जिनसी उभार के लिए कोई बिकनी शो देखा जा सके। उनका तजर्बा था कि इंतहाई आसाबी तनाव के हालात में मामूली सा जिनसी ख्याल भी आसाबी तनाव में कमी का बायस बनता था। बिलाखिर उन्हें एक ऐसा चैनल मिल गया। उन्होंने उठकर अपार्टमेंट की अंदर से चटखनी इस ख्याल से चढ़ाई कि कहीं दामाद और बेटी जल्दी ना आ जाएं। उस चैनल पर हसीनाएं खूबसूरत छातियां दिखाने का मुकाबला कर रही थीं। हाजी ने उस उरिया मुकाबला हुस्न पर लाहौल पढ़ने के बजाय अपनी परेशानियों पर लाहौल पढ़ने की कोशिश की कि दुनिया में इंसान के लिए क्या क्या सामान्य रंगोबू है और मुझ जैसा इंसान किस कदर घटिया परेशानियों में उलझा हुआ है। हाँ मेरे खुदा, दुनिया में सिर्फ मैं ही बेईमान, झूठा और जलील शख्स हूँ। बाकी सारी दुनिया के लोग इंतहाई ईमानदार, सच्चे और अजीम लोग हैं। इसीलिए दुनिया में तेरे अच्छे, ईमानदार, सच्चे और अजीम लोगों के पास लंबी लंबी कारें हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। जिस कारोबार में भी वो हाथ डालते हैं उनको कामयाबी नसीब होती है, जबकि मेरे जैसे कुत्ते जलील लोगों को अपनी करतूतों की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता है बल्कि अपने ही जैसे लोगों के हाथों जलील भी होना पड़ता है। या खुदा, ये तो शायद मेरी जिंदगी का अच्छा कारोबार नहीं था, इसलिए ज्यादा जलील हुआ, लेकिन इससे 15 बरस पहले पाकिस्तान में घी के कारोबार में जो नुकसान हुआ, किस कदर बेआबरू होना पड़ा था। उन दिनों को याद करके हाजी की आंखों में आंसू बह निकले और हिचकी सी बंद गई। आंसुओं की बरसात में आंखें टीवी स्क्रीन पर छातियों की नुमाइश को किसी बेजान जिस्म की तरह देखती जा रही थी। मेरे खुदा, आज कौन कौन सी बात को याद करूं। घी का कारोबार तो बेईमानी वाला नहीं था, दूसरे कारोबारों जैसा कारोबार था। टैक्स तो गवर्नमेंट को कोई भी पूरा नहीं देता, मैं भी नहीं देता था। घी की क्वालिटी बाकी आड़तियों की निस्बत मेरी सबसे अच्छी होती थी। मैं अदायगियां भी सबको वक्त पर करता था, लेकिन सबसे कम नफा मेरी आढ़त को होता था। ये कम नफा बिलाखिर मुझे एक दिन होने वाले बड़े नुकसान को न बचा सका और मैं हर तरफ से लेन देन के दबाव में आ गया। बाकी सब बच गए। यकीनन वो मुझसे ज्यादा ईमानदार, सच्चे और अच्छे इंसान होंगे। फिर मैंने एक मिल में मुंशीगिरी की, वहां भी ज्यादा अरसा ना निकाल सका। वहां से निकलने की वजह तो मैं तस्लीम करता हूँ, मैं खुद था। मुझे मुंह फट बनने का शौक था। मेरा ख्याल था कि मेरे इर्द गिर्द बहुत मुनाफिकत और झूठ है, मेरा उससे गुजारा नहीं हो सकता। मैं मिल मालिकान को सीधी सीधी बात बताता था। मैं मानता हूं कि सीधी सीधी बात बताने में मैं शिकायत और चुगली लगाने का अंदाज भी अपना लेता था। मिल का अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आखिरकार 2-1 मालिकान भी मेरे खिलाफ हो गए और मुझे बिल आखिर जलील करके निकाला गया और साबित किया गया कि मैं बेईमान, झूठा और घटिया शख्स हूँ। मुझे तब भी लगता था और आज भी लगता है कि मैं यकीनन बेईमान, झूठा और घटिया शख्स हूँ और बाकी सारे सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग हैं, वो सब तरक्की के हकदार हैं। अलबत्ता 8 बरस पहले एक बार मेरी किस्मत अच्छी हुई और तूने मुझ जैसे घटिया, झूठे और बेईमान शख्स का साथ देकर बीवी और जवान बेटी समेत मुझे पाकिस्तान से निकाल कर कनाडा पहुंचा दिया। मेरी बेटी को कनाडा आते ही पिज्जा की दुकान में काम करने वाले एक लड़के का रिश्ता मिल गया। मेरी बेटी सीधी सादी FA पास लड़की है, उसको उस जैसा बर मिल गया। मेरे खुदा,
तेरी इंतहाई मेहरबानी है कि हम कनाडा आ गए। मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे खुदा, तेरा ये भी एहसान है कि सुगरा कनाडा में आकर मरी। अगर पाकिस्तान में मरती तो मैं अपनी बीवी के कफन और कफन से पहले कैंसर के मरज का क्या करता। खुदा भला करे कनाडा का कि मुझ जैसे घटिया, बेईमान, झूठे और गरीब शख्स की बीवी का इंतकाल इज्जत और आराम के साथ हो गया। बीवी को याद करके हाजी के आंसुओं की झड़ी लग गई। टीवी स्क्रीन पर उरियां छातियों और नंगी टांगे मुसलसल नाच रही थीं। हाजी की आंखें टीवी पर जमी थीं। आंसुओं की लड़ियां नंगी छातियों और रानों को मुसलसल धुंधला किए जा रही थीं। खुदाया, तूने कनाडा आकर पहले वेलफेयर पर बिठाया, फिर सिक्योरिटी की नौकरी मिल गई, 3 साल में क्रेडिट कार्ड भी बन गए, फिर किसी ने थोड़ी बेईमानी करके तनख्वाह ज्यादा दिखा के क्रेडिट लाइन भी बनवा दी। मेरे सामने सबकी इसी तरह क्रेडिट लाइनें बनती थी, लेकिन शायद मैं ही घटिया, झूठा और बेईमान शख्स था, इसलिए मेरी क्रेडिट लाइन मेरे हाथों बर्बाद हो गई। छोटा सा ग्रोसरी स्टोर क्या खोला, आमदन कम और खर्चे ज्यादा। 18-18 घंटे पागलों की तरह काम करता, नतीजा सिफर। आखिरी दिनों में डूबते ग्रोसरी स्टोर को बचाने के लिए एक दोस्त को पार्टनरशिप के लिए कहा। वो भी 8-10 हजार डॉलर लगाकर साथ मिल गया। कारोबार जो फौरी डूबना था वो 2-3 माह बाद डूबा। अब वही दोस्त जान को आ गया कि तुम्हारी गारंटी की वजह से पैसा लगाया था, अब कहां से भी करके दो, वापस दो। उसको बोतेरा समझाया कि नुकसान तुम्हारे सामने और तुम्हारे हाथों से हुआ है। मैंने पैसे जेब में तो नहीं डाले, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। जिंदगी अजीरन कर दी। मैंने उसको ये एहसास भी दिलाया कि इस कारोबार में मुझे 50,000 डॉलर का नुकसान हुआ है और तुम अपने 10,000 डॉलर पर वावेला किए जा रहे हो। उसने मेरे नए नए होने वाले दामाद को फोन करना शुरू कर दिया। दामाद ने तो उसको साफ बता दिया कि आइंदा उसे फोन ना करे। उसने सारी कम्युनिटी को बताया कि मैं फ्रॉडिया, घटिया, झूठा और बेईमान शख्स हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद वो दुरुस्त ही कहता है। मैं ही घटिया, झूठा और बेईमान शख्स हूँ, और अब ये नया कारोबार तो वाकई ही घटिया कारोबार है। इंसानों की स्मगलिंग, ये काम तो घटिया लोग करते हैं। यही घटिया काम कामयाबी से करने वाले बड़े बड़े कम्युनिटी रहनुमा और उलमा इसे इंसानों की खिदमत करार देते हैं कि गरीब मुल्कों से लोगों को रोजगार फराहम करने के वास्ते अमीर मुल्कों में लाया जाता है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो इंतहाई घटिया काम है।